So very good morning to everyone, students. So in the last lecture we have learned about our lesson number 3. Okay, lesson number 3, that is force and pressure. So here we will have a recap of what we have learned yesterday. Okay, so we were in lesson number 3, force and pressure, right? So what were the topic which we learned yesterday? कल हमने कौन से टॉपिक्स स्टडी किया? In the lesson number 3 we have learned what is force. We have learned what is force. Okay, we have learned different types of force. Different types of forces. Different types of force. Okay, we have learned the definition of pressure. Intensity we have learned. Intensity. Okay, we have learned formulas for calculation force, area and pressure. Okay, so these are the topics which we covered yesterday. Okay, we learned what is force. Force means nothing but pull and push of an object. Okay, pulling or pushing of an object is nothing but called as force. We have learned different types of forces. Okay, what were the different types of forces? Contact forces, non-contact forces. Okay, unbalanced force, balanced force. Next we have learned the definition of pressure as to what is pressure. Pressure means it is the intensity of force acting on an object. Intensity of force acting on an object. It is called as what? Pressure. Okay. Next, formulas for calculating force, area and pressure. We saw one triangle yesterday. हमने इस तरह का एक ट्रायंगल देखा था. Okay. Force, area, pressure. Okay. अगर एक ट्रायंगल आप याद रखते हैं तो आपको सारे फॉर्मूलाज जो है वो याद हो जाते हैं. व्हाट आई सेड, अगर आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है, वो प्रेशर का फॉर्मूला, प्रेशर कैसे कैलकुलेट करोगे? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. ओके. नेक्स्ट, इफ यू विल कैलकुलेट, इफ यू वांट टू कैलकुलेट व्हाट एरिया हियर, अगर आपको एरिया कैलकुलेट करना है. ओके, अगर एरिया कैलकुलेट करना है वो कैसे करोगे? फोर्स डिवाइडेड बाय प्रेशर, लाइक दिस. फोर्स डिवाइडेड बाय प्रेशर, है ना. एंड एक और क्या देखा था? इफ यू वांट टू कैलकुलेट फोर्स, अगर आपको फोर्स कैलकुलेट करना है तो वो कैसे करोगे? फोर्स इज इक्वल टू A into P, means area into pressure. Okay, very simple, है ना. So with the help of this diagram of this triangle, you can understand easily, you can remember these formulas as to how to calculate area, how to calculate pressure and how to calculate the force. Is it clear to you now? So our next topic which we are going to learn today is what? About the different types of pressure. Okay, we know that the matter exists in 3 stages, that is what? Solid, liquid and gaseous. Now today we will learn as to whether this pressure is exerted in liquids, या pressure is exerted in solid, okay, या gaseous. Okay, so the pressure exerts in liquid also, in solid also, as well as in gaseous also. Okay, so first we will learn how the pressure is exerted या pressure is seen in solids. Okay,
pressure in solid. So what we learned, what is the definition of pressure? Pressure मतलब हमने क्या सीखा था? Pressure means it is the intensity of force acting on an object. Intensity of force acting on an object is called as what? Pressure. Okay, so let's see whether pressure is exerted in solids or not. Yes, what I said, yes, pressure is exerted in solid also. We can take various example in our day to day life. Okay, suppose हम अपने बुक्स रखने के लिए स्टैंड बनाते हैं कि नहीं, वुडन शीट रखते हैं, उसके ऊपर हम बुक्स रखते हैं, है ना. सो आप कैसे बुक्स रखते हो? हाउ विल यू प्लेस द बुक्स? ओके, इंटेंसिटी मीन्स सपोज जैसे कि हम बाइक से ट्रैवल करते हैं या हम कार से ट्रैवल करते हैं, तो आपको एक मीटर दिखता है जिस पे क्या दिखाता है? बाइक का स्पीड दिखाता है या फिर कार का स्पीड दिखाता है कि एज टू हाउ मच इज द स्पीड ऑफ द कार और हाउ मच इज द स्पीड ऑफ बाइक, हाउ मच इज द स्पीड ऑफ कार और हाउ मच इज द स्पीड ऑफ बाइक पर किलोमीटर. जैसे उसका स्पीड बताता है ना, इसका स्केल कितना है, कितने स्पीड से वो बाइक जा रही है. ओके, सो यहाँ पे हम फोर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे कि फोर्स कितना है? क्योंकि फोर्स को भी कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ यूनिट चाहिए ना, क्योंकि जैसे हम लोग बोलते हैं स्पीड हम कैसे बताते हैं? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, हम ऐसे बताते हैं ना. सो फोर्स को भी बताने के लिए हमें एक स्केल चाहिए, एक मीटर चाहिए ना. सो वो फोर्स को कैलकुलेट करने की जो मीटर होता है उसे हम कहते हैं इंटेंसिटी. दैट इज व्हाट? इंटेंसिटी. इंटेंसिटी मीन्स सिंपली वी कैन से दैट इंटेंसिटी मीन्स इट इज अ स्केल विच इज यूज्ड टू मेजर द फोर्स. ओके, फोर्स को हम कैसे मेजर करेंगे? फोर्स हम कैसे बताएंगे? हाँ, एक हमने इतने फोर्स से हमने ये काम किया, इतने फोर्स से हमने वो पुश किया किसी ऑब्जेक्ट को, तो हमें एक स्केल चाहिए, एक मीटर चाहिए ना बताने के लिए कि हाँ इतना फोर्स लगा था. सो वो मीटर, वो स्केल हम कैसे बता सकते हैं? इंटेंसिटी, उसे कहते हैं इंटेंसिटी. अंडरस्टूड? ओके, so we were pressure in solid. Yes, so in solid also pressure is exerted. So let me take example. मैंने क्या example लिया था? Suppose हम बुक्स रखने के लिए क्या करते हैं? वुडन शीट्स रखते हैं, वुडन ब्लॉक्स रखते हैं, शीट्स रखते हैं. So let me take example of a wooden sheet. Okay, आपने वॉल पे ऐसे स्टैंड लगाया है. ओके, स्टैंड लगाया एंड यू हैव प्लेस्ड अ वुडन शीट हियर. ये है आपका वुडन शीट, वुडन शीट. ओके, और आपने अपने बुक्स अरेंज किए हैं. दिस आर योर बुक्स, है ना, दीज आर योर बुक्स. ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो बुक्स है एक तरह से फोर्स एक्ट करता है. किसके ऊपर? इन वुडन शीट के ऊपर फोर्स एक्ट करता है ना. यस, सो ये जो बुक्स हमने इसके ऊपर रखा है वो इस पे वजन देता है, फोर्स देता है. फोर्स ऑफ दिस बुक्स इज एक्टिंग ऑन दिस वुडन शीट. ओके, वुडन शीट आप ये मत सोचें कि वो बहुत ही थिक होता है तो बेंड नहीं हो सकता है कुछ भी. सो इट इज़ वेरी थिन, द वुडन शीट इज़ वेरी थिन. आपने यहाँ पे बुक्स रखे हुए हैं. ओके, सो हियर व्हाट इज हैपन? द फोर्स इज एक्यूमुलेटेड एट वन प्लेस और इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेरियस इन द डिफरेंट एरिया. यहाँ पे ये जो बुक्स हैं, दीज आर योर बुक्स, है ना. सो यहाँ पे वी आर सेइंग दैट द बुक्स आर एक्टिंग एज अ फोर्स ऑन द वुडन शीट. ओके, ये बुक्स का कुछ वजन इस शीट पे आ रहा है. सो ये वजन जो है वो एक ही जगह आ रहा है या फिर इसके वजन जो इसका फोर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है अलग अलग एरियाज में. इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट. एक ही जगह पे फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है. द फोर्स इज नॉट एक्टिंग ऑन अ सिंगल प्लेस. हियर द फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड. ओके, फोर्स प्रेशर, लेट मी से प्रेशर. सो ये जो प्रेशर, थोड़ा बहुत प्रेशर एक्ट कर रहा है ना वुडन शीट पे. कौन क्या एक्ट कर रहा है वुडन शीट पे प्रेशर? ये बुक्स, इन बुक्स का थोड़ा बहुत प्रेशर जो इन वुडन शीट्स पे है. ओके, सो प्रेशर एक जगह एक्ट हो रहा है क्या? नो, ये जो प्रेशर है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है यहाँ. ओके, अलग अलग एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सो दैट ये बैलेंस करके रखा है. इस वुडन शीट ने बैलेंस करके रखा है. नाउ दिस इज द वन. अभी सेकेंड थिंग आप क्या करोगे? सेकेंड पिक्चर में सेम वुडन वही स्टैंड है, उस पर आप क्या करोगे? इन बुक्स को एक के ऊपर एक अरेंज करके रखोगे, वन अबाउट द अदर. ओके, ओके,
सो यू कैन सी यहाँ पे जो प्रेशर है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है एरियाज में, ओके। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, इन द पिक्चर नंबर 2 व्हाट इज हैपनिंग, क्या हुआ है यहाँ पे, ओके, व्हाट हैपेंड हियर in the picture number 2, what can you see, okay, here the pressure is distributed to various different area, but here the pressure is acting on a single place, okay, मतलब आपका जो प्रेशर का जो एरिया है वो छोटा हो गया है, ये जानो, प्रेशर जहाँ पे वो प्रेशर एक्ट कर रहा है वो एरिया छोटा हो गया, दिस इज व्हाट एरिया, ओके, एरिया, ओके, यहाँ पे प्रेशर का एरिया ज़्यादा है एंड यह प्रेशर का एरिया जो है वो कम है, ये जानो, ओके, क्योंकि यहाँ पे एरिया कम है, जहाँ पे वो प्रेशर एक्ट कर रहा है वो एरिया यहाँ पे कम है, सो प्रेशर आपका ऑटोमेटिकली प्रेशर ज़्यादा होगा, है ना, प्रेशर जो है ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो जहाँ पे वो प्रेशर एक्ट हो रहा है वो एरिया बहुत ही कम है, सो ऑटोमेटिकली प्रेशर जो है वहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, तो आप देख सकते हो कि ये जो वुडन ब्लॉक है वो कैसा हो गया, इट इज़ बेंडिंग इन द मिडल, क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, वुडन ब्लॉक तो पतला सा है ना, क्या होता है, ड्यू टू प्रेशर इट इज़ बेंडिंग इन द मिडल, ओके, सो आपको याद रखना है यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, ओके, प्रेशर जहाँ पे एक्ट हो रहा है एरिया जो है ज़्यादा है, ओके, सो द प्रेशर इज डिवाइडेड इन इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेरियस प्लेसेस, सो प्रेशर कम होगा, एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा, एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, ओके, सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर एरिया आपका बढ़ रहा है सो प्रेशर आपका लेस होगा, जस्ट लाइक इन द फर्स्ट एग्जाम्पल, एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर जो है वो लेस होगा, एंड नाउ बाय सीइंग इन द सेकंड पिक्चर व्हाट यू कैन से दैट हियर द एरिया वेयर द प्रेशर इज एक्टिंग इज लेस, हमारा सेकंड, ये फर्स्ट पिक्चर में, सेकंड पिक्चर में क्या था, एरिया जो है आपका लो है यानी कम है, एरिया जो है आपका लेस है, तो प्रेशर क्या हो रहा है, ज़्यादा एक्ट हो रहा है, प्रेशर इज हाई देयर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ओके, डिड यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, okay, now are you getting my voice, is my voice clear, okay, okay, so मैंने क्या बोला यहाँ पे, एरिया, प्रेशर यहाँ पे एक्ट हो रहा है बट प्रेशर का जो एरियाज है, ओके, प्रेशर यहाँ पे एक्ट हो रहा है, एरिया जो है वहाँ पे प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, ओके, तो एरिया बड़ा है, प्रेशर आपका लेस है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे वो प्रेशर एक्ट हो रहा है, ओके, द प्लेस वेयर द प्रेशर इज एक्टिंग, द एरिया वेयर द प्रेशर इज एक्टिंग इज वेरी स्मॉल या वेरी लेस, सो द प्रेशर इज हाई हियर, ओके, सो देयर इज अ इनवर्सली proportional to area is inversely proportional to the P, that is pressure, maths में है ना आपको inversely proportional, so area, if the area is less then the pressure will be more, you can see that the wooden block is bending in the middle, okay, and if the area is large the pressure will be less, okay, inversely proportional होता है, understood, so one more example I will take, okay, हम क्या करते हैं, अगर कुछ हमें टांगना होता है, okay, अगर हमें कुछ टांगना होता है, आप देख सकते हो क्योंकि सी दिस गिटार हियर दिख रहा है ना आपको, तो वो वॉल पे कैसे टिका हुआ है, मैंने वहाँ पे क्या लगाया, एक कील लगाया हुआ, ओके, आई हैव punched a nail on the wall, okay, and I have hanged the guitar there, okay, so hole punch करने के लिए आप क्या करते हो, कील लेते हो, हैमर लेते हो, and just you beat the nail with the hammer, right, so have you seen the nail how it is, ओके, एक साइड से ब्लंट होता है, एरिया ज़्यादा होता है, उसका राउंड शेप में इस तरह का होता है ना नेल, दिस इज हाउ द नेल, ये जानो, सो जब आपको ये नेल लगाना होता है तो विच पॉइंट यू विल चूज दिस पॉइंटेड एंड टू द वॉल, है ना, ओके, सो ये कील को आप पॉइंटेड एंड लेते हो दीवार में लगाने के लिए, ओके, सो यू विल टेक द नेल, यू विल पुट टू द वॉल एंड यू विल स्टार्ट बीटिंग विद द hammer, okay, so now what you can observe that जहाँ पे वो जो point है, suppose ये wall है, ये मेरा wall है and मैंने ये कीला लिया है और मैं इस wall पे मार रही हूँ hammer से, okay, so here the area is what, less या more, I'm taking a nail and I'm beating with the hammer, okay, so the nails and the end portion of the nail is what, very sharp, that means
You are placing that point on the point of the nail on the wall. That means the area where the pressure is acting is small, isn't it? Okay. So the area where the pressure is acting, that means उसका जो point है nail का वो दीवार में लगा है ना, दीवार में लगा हुआ है, आप हैमर से मार रहे हो. ओके ओके. सो व्हाट इज हैपनिंग, द प्रेशर जहाँ पे वो प्रेशर एक्ट हो रहा है वो एरिया बहुत ही छोटा है, तो प्रेशर ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा. ओके, प्रेशर ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो. ओके. सो ईजिली वो नेल जो है वो उसके अंदर वॉल के अंदर जाता है. अभी ऑब्जर्व करो, सपोज आपने नेल को उल्टा कर दिया है, नेल को आपने उल्टा कर दिया और उसका जो ये राउंड पोजीशन है, ये जो राउंड पोजीशन आप देख सकते हो, सपोज आपने उल्टा कील पकड़ी है और पॉइंटेड एंड आपने अपनी तरफ लिया है और वो जो राउंड पोर्शन है आपने दीवार की तरफ रखा हुआ है. ओके, एंड यू आर बीटिंग विद द हैमर. सो क्या वो इजीली दीवार में जाता है क्या? सपोज आपने पॉइंटेड एंड अपनी तरफ पकड़ा है, उल्टा कीला पकड़ा और जो राउंड पोर्शन है वो दीवार की तरफ है. नाउ यू आर बीटिंग विद द हैमर. सो विल इट गो इजीली इन द वॉल? नो. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे जो प्रेशर का एरिया जो है वो क्या हो गया है, बड़ा हो गया है. सो वो ईजिली नहीं जाएगा, है ना, ईजिली नहीं जाएगा. अंडरस्टूड? नो. सो दिस इज वॉट कि अगर आपका जो एरिया जहाँ पे प्रेशर एक्ट कर रहा है, अगर वो एरिया छोटा है तो प्रेशर ज़्यादा होगा. ओके, जैसे हमने कील का पॉइंटेड एंड दीवार पे लगा और हम हैमर से मार रहे हैं, तो ईजिली क्योंकि वो एंड जो है पॉइंटेड है, एरिया जो है छोटा है, ईजिली और प्रेशर वहाँ पे ज़्यादा एक्ट हो रहा है, तो ईजिली वो कील जो है वो दीवार में चले जाती है. ओके. एंड वन मोर एग्जाम्पल, हम किचन्स में मम्मी क्या करती है, वेजिटेबल्स किससे काटते हैं या फ्रूट्स हम किससे काटते हैं? वी यूज़ नाइफ, isn't it? We use the knife to cut the vegetables and fruits. Okay, so how you can see the वो जो चाकू होता है कितना शार्प होता है, धार होता है ना उसका चाकू का, it is very sharp. Okay, so why you are not using a blunt knife जो धार नहीं होता, ऐसा चाकू आप लोग क्यों यूज़ नहीं करते हो वेजिटेबल्स काटने के लिए? Here also the same thing is applied. Okay, here also same thing is applied. If the knife is sharp, okay, if the knife is sharp, ओके, आप वेजिटेबल कट कर रहे हो, नाइफ जो है आपका शार्प है. सो क्या हो रहा है, अगर आपका जो नाइफ शार्प है, दैट मीन्स द एंड ऑफ द नाइफ इज वेरी शार्प. एंड जब आप वेजिटेबल काटते हो तो उसका प्रेशर जो है एक स्मॉल एरिया में एक्ट होता है. ओके, एक स्मॉल एरिया में एक्ट होता है, वो ईजिली कट जाता है आपका वेजिटेबल या फ्रूट्स. ओके, बट अगर वो उसकी दूसरी तरफ से आप काटते हो, दैट मीन्स जो ब्लंट पोर्शन होता है जहाँ पे धार नहीं होता, उल्टा करके जब आप काटोगे तो ईजिली कटेगा क्या? नो, बिकॉज जो प्रेशर है उस वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एरियाज में. सपोज ये वेजिटेबल है और मैं काट रही हूँ नाइफ से, ओके, और ब्लंट पोर्शन से काट जहाँ पे धार नहीं है, तो क्या होता है, प्रेशर जो है वो इस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो वो प्रेशर वहाँ पे कम एक्ट करता है. और मैं जब धार वाला पोजीशन ले रही हूँ, जब जहाँ पे शार्प है, तो क्या हो रहा है, इट द प्रेशर इज एक्टिंग ऑन अ स्मॉल एरिया, फिक्स्ड एरिया, तो ईजिली वो कट जाता है. इज इट क्लियर टू यू? ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक. सो इज इट क्लियर दैट हाउ द सॉलिड एक्सर्ट्स प्रेशर, या प्रेशर सॉलिड्स में कैसे होता है, समझा सबको? वेरी गुड. ओके, सो लेट्स start our next topic, that is pressure in liquids. Pressure in liquids. So जैसे सॉलिड में प्रेशर एक्ट करता है वैसे ही लिक्विड में भी प्रेशर एक्ट करता है. ओके, सो अगेन वी कैन टेक मैनी एग्जाम्पल्स इन दिस. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे डे टू डे लाइफ में. यस और नो? ओके, सो हैव यू ऑब्जर्व, हम पानी में हमेशा हमें खेलना पसंद. सपोज अ पॉन्ड इज देयर और लेक इज देयर, हम क्या करते हैं, वी टेक अ स्टोन एंड जस्ट वी थ्रो द स्टोन इन द पॉन्ड या फिर लेक, है ना. What you will do, you will take a stone, you will throw it in the pond. फिर वो stone जो है वो pond के ऊपर float होता है क्या? Do the stone float on the water? No, it will sink in the water. वो जो पानी में जो है वो stone क्या होता है, डूब जाता है ना. Now you take a paper, roll it and you throw in the water. pond में, लेक में आप जो पेपर रोल करो आप उसे फेंको. But what is happening there? वहाँ पे क्या होता है, क्या होता है, विल द पेपर डिप इन द वाटर, सिंक इन द वाटर? नो,
So now are you getting voice? Okay. So what is happening when you are rolling up paper and throwing in the pond? पेपर जो है ऊपर फ्लोट करता है. ओके. एंड जब क्या होता है, जब आप स्टोन फेंकते हो, वो स्टोन क्या होता है, पानी में जो है सिंक हो जाता है. यस और नो? ओके. So here in this liquid also the pressure is exerted. So let's take an example which is given in your textbook. Okay, you take a plate or you may take a container. ये हमने एक कंटेनर लिया. We are placing a bottle. Okay, हमने ये बॉटल को क्लोज कर दिया है. We have placed a knob here. और इस बॉटल में क्या भरा हुआ है? वाटर. ओके, पूरा पानी भरा हुआ है. क्या भरा है इसमें? पानी भरा. We have taken a bottle. We have filled completely up to the neck. We have filled the water. Now what do? You make 3 holes in that. 1, 2 and 3. Hole 1, hole 2 and hole 3. So at the time you make the holes in the bottle, what is the next thing you observe? क्या देखते हो आप? Immediately पानी जो है वो होल से वो एक फोर्स से बाहर आने लगता है. Yes or no? Okay, हमने एक बॉटल लिया, उसमें पूरा पानी भर दिया हमने. Now what we have done? We had pierced a needle. हमने एक नीडल से 3 होल कर दिया उसमें. ओके, वी हैव पियर्स्ड 3 होल्स इन दैट. एंड जैसे ही हमने होल बनाया बॉटल में, क्या होता है, एक फोर्स से, एक प्रेशर से क्या होता है, वो लिक्विड यानी वो वाटर जो है वो बाहर गिरने लगता है ना, बाहर गिरने लगता है. नो व्हाट इज हैपनिंग? ओके, तीनों ही होल से पानी जो है वो बाहर आता है. इसीलिए इस होल से भी पानी बाहर आएगा, इस होल से भी पानी बाहर आएगा एंड इस होल से भी पानी बाहर आता है. ओके, इन दिस वे. ओके, सो मैनी होल्स जो है वो एक नजदीक नजदीक बनाया है क्या? ओके, आर द होल्स क्लोज टू ईच अदर? नो, दे आर नॉट क्लोज टू ईच अदर. ओके, आई हैव मेड सम डिस्टेंस बिटवीन द होल्स. ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग? इन फ्रॉम द 3 होल्स द वाटर इज कमिंग आउट. तीनों ही होल से जो है पानी जो है वो बाहर आता है. बट ओके, द प्रेशर इन द 3 होल्स विल बी डिफरेंट. ओके, तीनों ही होल से पानी बाहर आ रहा है, बट प्रेशर जो तीनों में वो सेम है क्या? नो. ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग? ओके, प्रेशर तीनों में ही एक्ट हो रहा है, बट आप देख सकते हो कि पानी जो गिर रहा है, जो फिगर नंबर 3, सॉरी होल नंबर 3, you can see the hole where the hole number 3 is there. You can see the water is coming from more pressure and it is falling very fast. Okay, मतलब पानी होल जैसे ही जितना बॉटम, जितना नीचे है होल, उतना ही वो पानी फोर्स से, प्रेशर से वो दूर जाके गिर रहा है. ओके, दिस इज आवर होल नंबर 1, होल नंबर 2 एंड होल नंबर 3. ओके, यहाँ पे हमने 3 होल बनाए हैं. जो लास्ट होल है, होल नंबर 3, जो मतलब बॉटल के बॉटम से जो सबसे नज़दीक में है, ओके, वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर एक्ट हो रहा है, सबसे ज़्यादा प्रेशर एक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से वो पानी जो एकदम दूर जाके गिर रहा है. Okay, it is falling very far and just above it the hole number 2. Okay, it will fall somewhat near to it. ये जो है होल नंबर 3 का थोड़ा दूर गिरा है, होल नंबर 2 का थोड़ा सा अंदर, थोड़ा सा इससे नजदीक गिरेगा पानी. एंड द होल नंबर 1 it will fall, ये जो है और बॉटल के एकदम नजदीक में गिरता है. ओके, ओके, मीन्स जैसे जैसे वो होल का हाइट बढ़ रहा है. ओके, हियर व्हाट इज हैपनिंग? द हाइट ऑफ द होल इज इंक्रीजिंग. ओके, यहाँ पे कम हाइट है, बॉटल के नज़दीक हमने होल बनाया, दैट इज फिगर होल नंबर 3. होल नंबर 2 थोड़ा सा ऊपर बनाया है, होल नंबर 1 और ऊपर बनाया है. मीन्स क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये होल्स का जो हाइट है वो बढ़ाते जा रहे हैं, होल्स का हाइट जो है यहाँ बढ़ाते जा रहे हैं. ओके, बट वन थिंग यू कैन सी, जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है होल की, वैसे वैसे प्रेशर जो है वो कम होते जा रहा है ना. फिर सबसे हाइट में कौन सा होल है? होल नंबर 1. तो आप देख सकते हो पानी, यहाँ भी प्रेशर एक्ट कर रहा है, पानी एकदम बॉटल के नज़दीक गिर रहा है ना. होल नंबर 2 थोड़ा सा आगे गिरा है, होल नंबर 3 का सबसे ज़्यादा प्रेशर है, सो वो दूर जाके गिरता है.
एकदम दूर जाके गिरता है। ओके, सो यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हो, व्हाट कैन यू ऑब्जर्व इन दिस, हाँ, कि इफ द हाइट इज इंक्रीजिंग, अगर हाइट जो है इंक्रीज हो रहा है, सो प्रेशर क्या हो रहा है, अगर हाइट इंक्रीज हो रहा है प्रेशर आपका क्या होता है, डिक्रीज होता है ना। if the height is increasing, if the height is increasing, the pressure will go down, immediately it will decrease, okay, and जैसे आपका, ये हमने देखा हाइट जब इंक्रीज हो रहा है तो आपका प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, और जैसे जैसे हाइट आपका नीचे आ रहा है, जैसे जैसे आपका हाइट जो है वो नीचे आ रहा है, मीन्स पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, मीन्स ये जो है वो बॉटम तक आ रहा है, हाइट जो है आपका डिक्रीज हो रहा है ना। सो यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 पे आप देख सकते हो पानी कितना दूर जाके गया, मतलब प्रेशर यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। हाइट अगर आपका डिक्रीज हो रहा है सो प्रेशर आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा, यहाँ पे भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, इज इट क्लियर टू यू, अंडरस्टूड? So this is one example, okay? Understood? Now one more example I will take. Suppose you have taken a big container, okay? And you have filled water in it. हमने इसमें पानी भर दिया, इसमें हमने पानी भर दिया। नाउ लेट मी टेक एग्जांपल ऑफ अ बॉल। ये जो है एक प्लास्टिक बॉल है, ये क्या है, प्लास्टिक बॉल। प्लास्टिक बॉल है, ये क्या है, ये प्लास्टिक बॉल है। ओके, हमने बहुत बार खेला होगा बचपन में, बच्चे भी खेलते हैं हमारे यहाँ, है ना। व्हाट दे डू, ओके, एक कंटेनर लेंगे या कुछ भी लेते हैं, पानी लेते हैं, और क्या करते हैं, बॉल उसमें फेंकते हैं। ओके, और क्या करते हैं, दे प्रेस द बॉल इन द वाटर। ओके, क्या करते हैं, उस कंटेनर में हमने कंटेनर लिए, उसमें हमने पानी भरा, और हम बॉल को क्या करते हैं, वी ट्राई टू पुश द बॉल इनसाइड द वाटर। प्लास्टिक का बॉल, ओके, वी आर पुशिंग, वी आर ट्राइंग टू पुश द बॉल इनसाइड। सो क्या होता है, क्या वो बॉल अंदर जाके रुकेगा पानी में, विल द बॉल सिंक इन द वाटर और इट विल फ्लोट ऑन द वाटर। ओके, ओके, क्या करता है बॉल जो है, आप एक फोर्स से अंदर डालते हो पानी में, और क्या होता है, इमीडिएटली वो ऊपर आ जाता है ना, ऊपर आता है। ये सो नो, बिकॉज एक तो रीज़न है, आप बोलोगे क्या रीज़न है इसका, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो लाइट वेट होता है, हल्का होता है। ओके, सो वो बॉल इमीडिएटली क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। जब आप उसे छोड़ देते हो, इमीडिएटली कहाँ आएगा, वो ऊपर आ जाएगा, है ना। सो एंड यू कैन फील अ फोर्स ऑन योर हैंड्स, आपके हाथों में आप एक फोर्स महसूस कर सकते हो कि जैसे ही आपने बॉल को अंदर पुश किया और जैसे आपने छोड़ा, इमीडिएटली वो बॉल जो ऊपर आ, मतलब पानी के अंदर भी कोई ना कोई फोर्स एक्ट हो रहा है कि नहीं। जिस फोर्स से आपने उस बॉल को अंदर डाला, ओके, यहाँ पे आपने प्लास्टिक बॉल लिया, राइट। नाउ यू टेक अ रबर बॉल, जो रबर बॉल होता है ना, कॉर्क बॉल या रबर बॉल होता है, ठीक है। सो आप अभी वो बॉल लो, जो वजन वाला बॉल होता है ना, वो लो आप, और पानी में आप डालो। यू टेक दैट बॉल, यू पुश दैट बॉल इन द वाटर। क्या होता है, बॉल जो है उसमें सिंक हो जाता है, डीप सिंक हो जाता है ना, बॉल जो है उसमें सिंक हो जाता है। ओके, सो वाई, क्योंकि एक तो है कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके, कोई भी वजनदार चीज़ है, कोई भी चीज़ आप जब उसे नीचे फेंकते हो तो क्या होता है, वो नीचे की तरफ गिरता है, इट डजंट गो अपवर्ड्स। अगेन हियर विच फोर्स इज द ग्रेविटेशनल force, gravitational force, due to gravitational force the things will go downwards. Okay, ball जो है आपका पानी में चले गया। okay, but what happened in the case of plastic ball, जिस स्पीड से आपने पानी में बॉल को पुश किया, उसी स्पीड से वो जो है ऊपर आ गया। that means here two types of forces acting। आपने पानी में पुश किया बॉल को, कौन से फोर्स से वो अंदर गया, which force was acting here, gravitational force was acting, but उसी स्पीड से वो बॉल जो है वो ऊपर की तरफ आया, है ना। जिस तरह से आपने बॉल को अंदर पुश किया, सो अगेन वो बॉल जो है आपने पुश किया, छोड़ दिया, तो बॉल जो है इमीडिएटली जिस स्पीड से आपने पुश किया बॉल को पानी में, उसी स्पीड से वो बॉल जो है ऊपर आया। ओके, दैट मीन्स आपने यहाँ से फोर्स अप्लाई किया, बट उसी स्पीड से वो बॉल जो है ऊपर आया। दैट मीन्स
there is an invisible force acting from the water also. मतलब उस पानी के अंदर भी कुछ invisible force है जो act हो रहा है. Okay, what is that force? उस force को क्या कहते हैं? buoyant force. क्या कहते हैं? buoyant force. Okay, the force which has pushed the ball again in the top. Okay, हमने बोला हमने प्लास्टिक बॉल को वाटर में पुश किया. We have pushed the ball in the water, but again with the same speed it have come upwards. Okay, so which was the invisible force acting in the water inside? That was what? Buoyant force. इस फोर्स की वजह से ये हुआ buoyant force. Okay, when you are pushing it inside the water, when you're pushing the ball inside the water. Okay, and one more example we will take. Again here we are taking the container. We are taking the container, we are filling the water in it. Okay, we are filling the water in it. Now take a bottle. Okay, ये बॉटल को हमने, ये खाली बॉटल, इट इज अ एम्प्टी बॉटल. फर्स्ट वी आर टेकिंग अ एम्प्टी बॉटल एंड यू हैव कवर्ड द बॉटल्स लिड. आपने बॉटल लिया है, खाली बॉटल लिया है एंड उसका जो ढक्कन आपने लगा दिया है. ओके, ढक्कन आपने लगा दिया है. एंड नाउ व्हाट यू आर डूइंग, यू आर पुशिंग द बॉटल इनसाइड. ओके, what is happening? Will the bottle go sink in the water? Will it be sink in the water or will it float on the water? Because this is an empty bottle. This is a empty bottle. It will float on the water, right? It will float on the water because this is empty bottle. Okay. Now next what we are doing? We are taking one more bottle. हम एक और बॉटल ले रहे हैं बट उसमें अभी हम क्या करेंगे, पानी भर देंगे. ओके, अगेन वी आर टेकिंग वन मोर एम्प्टी बॉटल इज देयर, इट इज फ्लोटिंग ऑन इट. ओके, नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टेकिंग वन मोर बॉटल एंड हियर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर फिलिंग द बॉटल विथ completely